Hey everyone, and welcome back to the series where we are discussing the gist of all the chapters of class 11th. And yes, we are going to cover both the books, Hornbill and Snapshots. So today we are going to start from the first chapter of book Hornbill, that is Portrait of a Lady. Now, you're going to love the story being narrated in this chapter because it is an autobiographical account being written by author Khushwant Singh, where he has tried to tell us all his experiences with his grandmother. Now, if I ask you about your reminiscences or your memories or your experiences with your grandparents, I am damn sure you're going to say yes, they are the happiest one. हम सबके मेमोरीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी होती है बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स ही वो लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें बिगाड़ते हैं, ओवर प्यार देकर हमको पैम्पर करते हैं, हमको हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस का अकाउंट इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने शेयर किया है, जहां उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज़, इनफैक्ट ग्रैंड मदर के साथ कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज़ जो शेयर करी थी, और जो भी एक्सपीरियंस थे कैसे टाइम के साथ चेंज हुए वो बताने की कोशिश करी। Let us start the gist of the chapter. Now the first phase of the chapter tells about the physical characteristics of grandmother. Talking about the physical characteristics of grandmother, like all the grandmothers are of grey hair, short height, bent and very old, face crisscross of wrinkles. Author's grandmother was also possessing the similar characteristics. She was a very old lady, her face was crisscross of wrinkles and her hair were grey or you can say white, and she was also always engrossed like all the grandmothers in offering her prayers to the god, for which in one hand she always used to keep beads of rosary, that means Rudraksh ki mala, and along with beads of rosary, she always used to murmur inaudible songs that were basically offerings or prayers that were being offered by grandmother to the god. जो भी वो भजन गाती रहती थी हमेशा। सो एक हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला और हमेशा मुंह पे भगवान के भजन। अब ये कुछ बेसिक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर ग्रैंड मदर की होती हैं। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। ग्रे हेयर, शॉर्ट हाइट, बेंट, एक हाथ हमेशा कमर पे, जैसे सारी बूढ़ी अम्माओं का होता है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होगे। एंड वाइट कपड़े पहने हुए, हमेशा वाइट साड़ी, एंड मुंह पे हमेशा भगवान का नाम, हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारी ग्रैंड मदर के। नाउ देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट लाइन दैट आई वुड लाइक टू रेफर about the characteristic of grandmother, and that is an expanse of purity and peace as in snow converted winter landscape with mountains. I repeat once again, an expanse of purity and peace. Now expanse of purity and peace has been used for grandmother कि शांति का और प्योरिटी का प्रतीक थी। मतलब हमेशा मन में हलचल, जैसे हम सब यंगस्टर्स होते हैं, वी वांट टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, वी हैव बिग एम्स, बिग गोल्स, ऐसा कुछ नहीं था। ग्रैंड मदर बड़ी शांत स्वभाव की थी, जो है लाइफ में खुश है, नॉट मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर लाइफ, एंड शी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद स्नो कवर्ड विंटर लैंडस्केप विद माउंटेन्स। नाउ विंटर लैंडस्केप, माउंटेन्स में विंटर लैंडस्केप कैसा होगा आप इमेजिन करो, पूरा स्नो से ढका हुआ होगा। अब जब स्नो से ढका हुआ होगा, देयर इज़ नो ग्रीनरी अराउंड, देयर इज़ ऑलवेज स्नो एवरीवेयर, दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर होने की वजह से शांत होगा, दूर दूर तक नज़र जाएगी तो सफ़ेद दिखेगा, वाइट। नाउ वाइट कलर इज़ सिम्बॉलिक ऑफ पीस, कॉन्टेंटमेंट, शांति का सिंबॉलिक होता है वाइट कलर। तो इधर ग्रैंड मदर को एक विंटर लैंडस्केप से कंपेयर करना, कवर्ड विद स्नो, expresses that grandmother was possessing a few characteristics like contentment, satisfaction, happiness. She was not a kind of a lady who wanted more and more in her life. She was happy with whatever she was having. एक छोटी सी फैमिली, एक अच्छा सा grandson, and 2 रोटी मिल रही है खाने की, she is happy with that. So these are the characteristics of grandmother जिससे हमारा chapter start होता है। आगे बढ़ते हैं।
Talking about grandfather, we have got to know a bit about his physical features and characteristics from a portrait hanging above the mantelpiece. And in that picture, grandfather is looking really very old, of course with some wrinkles on his face. He's having long beard and also a turban on his head. So now if anyone asks you anytime, tell the characteristics of grandfather in the chapter Portrait of a Lady, you have to tell, you have got to know the characteristics from the portrait that is hanging above the mantelpiece. And yes, of course, he is looking very old in that picture, and he is wearing a turban with a long beard and loose fitting clothes. Okay, that's what we have got to know about the grandfather in the chapter. Moving forward, now we are going to discuss the first phase of the chapter. In the very first phase, the grandson Khushwant Singh was being sent to the village to be taken care of by grandmother. Now, शायद parents working होंगे, probably they have been working somewhere out and उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी, that's why उन्होंने सोचा होगा कि कुछ टाइम के लिए जब तक वो बड़ा होता है दादी के पास छोड़ देते हैं विलेज में. That happens many a times. अब दादी के पास भेजना टेक केयर करने के लिए ऑब्वियसली अनडाउटेडली एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि दादी से अच्छी टेक केयर बच्चों की कोई नहीं कर सकता. आई थिंक आई एम राइट. यू ऑल अग्री टू इट. इफ यस, देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ व्हेन खुशवंत सिंह वेंट टू विलेज, हाउ हिज लाइफ was, that we are going to discuss now. What was his everyday schedule in the village? That we are going to just discuss. Every morning, Khushwant Singh tells us, every morning my grandmother used to wake me up, dress me up, bath me up, and my grandmother used to plaster my slate every day. अब प्लास्टरिंग स्लेट का क्या मतलब है? आज के ज़माने में हमारे पास बुक्स एंड नोटबुक्स होती हैं, पेन्स होते हैं. पहले के ज़माने में अगर आप अपनी दादी दादा से डिस्कस करेंगे तो पेन्स पेंसिल्स नहीं होते थे. तो एक प्लेट होती थी, एक प्लेट टाइप होती थी, स्लेट टाइप होती थी, जिसको प्लास्टर करते थे, उसी के ऊपर लिखा जाता था. तो दैट्स व्हाट खुशवंत सिंह इज़ ट्राइंग टू मेंशन हियर, कि मेरी दादी सुबह सुबह उठ के मेरे लिए प्लेट्स को प्लास्टर करती थी एंड फिर नहला धुला के मेरे साथ ही मेरे को एकम्पनी करती हुई टेंपल के लिए निकलती थी. अब इधर टेंपल मैंने क्यों बोला? क्योंकि उस ज़माने में बच्चों के लिए एक स्पेशल कुछ स्कूल्स नहीं होते थे विलेजेस में. आई एम मेंशनिंग विलेजेस में. टेंपल्स में एक छोटा सा एरिया बना दिया जाता था जहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी. एंड इट वॉज बीइंग सेड दैट स्टूडेंट्स शुड बी मॉरली डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ देयर लाइफ. तो इसलिए उन प्रीस्ट को बेस्ट माना जाता था उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उनको मॉरल टीचिंग्स देते थे, महाभारत रामायण एथिकल नॉलेज देते थे. और कुछ भगवान की तरफ इंक्लाइन करते थे बाय टेलिंग देम स्टोरीज अबाउट existence of God, and also by teaching them lots of spiritual songs, bhajans, and that's how. Along with that, ज़रूर अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे, 1 to 10 सिखाया जाता था. उनका ये मानना था बेसिक एजुकेशन मिल जाए, बच्चा साइन वाइन कर सकें, बेसिक अल्फ़ाबेट्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश जानता हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, इतना उनका नॉलेज का ब्रॉड बेस था, इससे ज़्यादा नहीं. बट मैंने बार बार मेंशन किया था विलेज. अगर सिटी में आ जाते हैं तो परसेप्शन और व्यू थोड़ा चेंज है. बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं. वी हैव CBSE, HBSE, and we have British schools, we have different boards and ICSE. बट विलेज में आज भी चले जाओ तो सिटी से कहीं ना कहीं सोच में डिफरेंस मिलेगा. तो उस ज़माने में तो ज़रूर होगा, राइट. सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ he has spent very good old days with his grandmother, जहाँ वो उनको रोज़ सुबह स्कूल में accompany करती थी, मतलब बेसिकली टेम्पल, वापस भी साथ ही आते थे. एंड ऑन देयर वे बैक they always used to carry lots of stale chapatis for stray dogs. तो रास्ते में आते वक्त जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते थे उनको वो चपाती खिलाते हुए आते थे. सो दैट वाज अ फन एलिमेंट फॉर खुशवंत सिंह. वो एक बच्चा था और डॉग्स को खिलाता था, खुश होता था, राइट. अब अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी. ग्रैंडसन एंजॉय कर रहा था, ग्रैंड मदर एंजॉय कर रही थी कि एक छोटा बेबी घर में आया. दे बोथ वर रियली हैप्पी उनकी खुशियों को. बट किसी की नज़र लग गई. नाउ पेरेंट्स डिसाइडेड कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया एंड वी मस्ट एडमिट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड टू अ गुड स्कूल इन सिटी. हर माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम एडमिशन दिलाएं. देयरफॉर दे डिसाइडेड टू कॉल हिम बैक टू द सिटी.
अब खुशवंत सिंह कहीं ना कहीं हैप्पी होगा क्या जाने में? वो इन्जॉय कर रहा था डॉग्स के साथ, मंदिर जाता था अपनी दादी के साथ, उसकी एक अच्छी लाइफ थी। सडनली उसे सिटी बुला लिया गया। एंड फॉर ग्रैंड मदर इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू सिटी, बिकॉज हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं एक एज में आके अपने विलेज पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इन दैट पर्टिकुलर एज 70-80 में आप कोई, मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे, आप कोई भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहेंगे ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चलो, दे डोंट एग्री टू इट, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता चुके होते हैं उस पर्टिकुलर गांव में या एरिया में, उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। एंड उस उम्र में वो रेडी नहीं होते अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ ऐसा ही केस ग्रैंड मदर के साथ भी था, बट स्टिल शी अग्रीड टू इट बिकॉज शी हैज़ डेवलप्ड अ वेरी गुड बॉन्ड एंड अटैचमेंट विद दिस बॉय खुशवंत सिंह। उसके खातिर वो सिटी भी गई। नाउ खुशवंत सिंह हैज़ गॉट एडमिशन इन अ गुड स्कूल इन सिटी। अब एक बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया है तो कहीं दूर होगा स्कूल, आप बस में जाओगे, आप आई थिंक आप सब लोग समझ पा रहे होंगे इस फीलिंग को, क्योंकि आप सब भी स्कूल बस में आते हैं एंड एक अच्छा स्कूल है आपका। सिमिलरली खुशवंत सिंह के साथ भी हुआ। बट देन once you get admission in a good school, obviously you are being taught English, you are being taught education of co-curricular activities, you are being taught co-curricular activities, you are being trained in music, you are being trained in dance. Similarly, Khushwant Singh was also getting these kind of trainings. But grandmother was an old school kind of lady. उसको पसंद नहीं आ रहा था ये, उसको लग रहा था कि हमारे यहाँ नाच गाना जो लोग करते हैं वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर दे बिलोंग टू अ हायर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी। तो उनके बच्चे नाच गाना करें, दैट वॉज अ स्ट्रिक्ट नो नो फॉर ग्रैंड मदर। सो शी गॉट रियली ऑफेंडेड व्हेन शी गॉट टू नो दैट grandson, that is Khushwant Singh, is learning music and dance, because according to grandmother music and dance has lewd associations, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, मतलब वो एक कैटेगरी जो नाच गाना करने वाले हैं उनके लिए ही डेस्टाइंड है। ओके अब थोड़ा गुस्सा होना शुरू हुई, बट ठीक है फिर भी अपने आप को जैसे कैसे मैनेज करती थी। धीरे धीरे ग्रैंडसन ने घर आके बताना शुरू किया कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। जिस दिन ग्रैंड मदर को पता चला इंग्लिश, उस दिन तो और गुस्सा हो गई कि इंग्लिश, वाई, ब्रिटिशर्स ने हमको लूटा था, उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, हम भारतीय हैं, हम इंडियन लैंग्वेज पढ़ेंगे। सो दीज काइंड ऑफ responses or reactions were coming from grandmother when Khushwant Singh started telling her about what all things are being taught in the school. Basically, she was not happy. All in all, she was not satisfied with the teachings in the school, with the things being taught in the school in city. Already city के against थी, अब school life से भी खुश नहीं है। अब कहानी में कुछ और ट्विस्ट आएगा क्या? कहानी में एक और ट्विस्ट ये आया कि अब वो जाने और आने, कम्यूट करने बस से स्टार्ट हुआ। अब जब बस से स्टार्ट हुआ तो एक कॉमन लिंक दोनों का क्या था, दैट दे यूज्ड टू गो टुगेदर टू द स्कूल एंड कम बैक टुगेदर फीडिंग ऑल द स्ट्रे डॉग्स। अब वो एक कॉमन लिंक भी टूट गया। मोर ओवर, टू एड फ्यूल टू द फायर, देयर आर नो स्ट्रे डॉग्स इन द सिटी, बिकॉज शहरों में, बड़े बड़े इलाकों में, सोसाइटीज़ में स्ट्रे डॉग्स नहीं होते। देयर आर गार्ड्स ऑल अराउंड, वो उनको भगा देते हैं। अब जो कुछ चीज़ें थीं जिसमें ये लोग खुश रहते थे, सोचा जाए तो वो सब चीज़ें चली गईं। क्या ग्रैंड मदर खुश होंगी? क्या खुशवंत सिंह खुश होगा? शायद हाँ, क्योंकि वो तो एक छोटा बच्चा है, एक नए स्कूल में गया है। बट ग्रैंड मदर का क्या? उनके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। बट स्टिल शी मैनेजेस टू बी हैप्पी। अपने बच्चे की खुशी के लिए वो अपने ज़रूर एक दो बार अपना कंसर्न दिखाती हैं और अपने बच्चों से बात करती हैं कि ये गलत पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज देनी चाहिए। बट बच्चे भी समझाने की कोशिश करते हैं दैट ममा यू विल हैव टू लर्न एंड अडेप्ट दिस थिंग, कि हमारे बच्चों को जो नॉलेज आज के ज़माने के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए वही स्कूल्स में दी जा रही है। सो यू विल हैव टू अडेप्ट इट, अपने रिजिड व्यूज़ को हटाना पड़ेगा। ग्रैंड मदर भी चुप हो जाती हैं, सोचती हैं चलो ठीक है बच्चों की खुशी के आगे। बट कहानी धीरे धीरे वर्स होगी या सुधरेगी, जानने के लिए पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ क्या होता है, दैट हमारा खुशवंत सिंह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है।
अब वो कॉलेज में आ गया है और वो डिमांड कर रहा है एक सेपरेट रूम. सो एक लास्ट लिंक उन दोनों के बीच में बचा था, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन, एंड दैट वाज कि वो सेम रूम शेयर करते थे. पहला बॉन्ड क्या था, सेम घर में रहते थे विलेज में, वो टूट गया जब ये यहाँ आ गए. साथ आना जाना, स्कूल जाना, यहाँ आ गए तो साथ आना जाना, वो वाला लिंक टूट गया सिटी में आने के बाद. बट स्टिल चलो एक रूम में रह रहे हैं. ग्रैंड मदर, दूसरा कॉमन लिंक क्या था, ग्रैंड मदर रोज़ स्कूल में जो भी विलेज में होमवर्क होता था वो आके प्रैक्टिस कराती थी. अब विलेज में स्कूल में क्या हुआ ग्रैंड मदर पूछती भी नहीं है, बिकॉज उसको लगता है अगर मैं पूछूंगी तो देन इट इज़ ओनली मी हु इज़ गोइंग टू गेट हर्ट. तो वो लिंक भी टूट गया. तीसरा कॉमन लिंक बचा है, वो क्या है कि दोनों साथ एक ही रूम में रहते हैं. तो एटलीस्ट ग्रैंड मदर को ये सेटिस्फैक्शन है, मैं सुबह दोपहर शाम बच्चे की शक्ल देख लेती हूँ, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट शी वाज ऑफ अ सेटिस्फाइड नेचर. ज़्यादा गुस्से वाली मार धाड़ वाली टाइप नहीं थी, तो वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती थी. देन शी ट्राई टू बी हैप्पी. बट अफसोस वो कॉमन लिंक of bond between grandmother and grandson that they used to share a similar room, that has been broken now, because grandson, that is Khushwant Singh, has been allotted a separate room because according to the parents he is a grown up now adult, he has got admission in college, therefore he deserves a separate room. अब वो आखिरी बॉन्ड भी इन दोनों का टूट गया. अब क्या, अब आपको क्या लगता है ग्रैंड मदर के लिए ये अडेप्ट कर पाना अपने आप को इस उम्र में, जब ऑलरेडी वो बहुत एजड है, इस टाइम पर इन सब इतने सारे झटके बर्दाश्त कर पाना इजी होगा? वो तो सिर्फ इस बच्चे के खातिर ही आई थी और बच्चा ही उनसे दूर होता जा रहा है. बहुतों को लग रहा होगा कि शायद वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, शायद वो इतनी बोल्ड नहीं होंगी. बट नहीं, वो बहुत बोल्ड थी. उन्होंने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया. उन्होंने सोचा ठीक है डॉग्स नहीं है तो स्पैरोज को फीड करूँगी, एनी हाउ मुझे तो नेचर से कनेक्टेड रहना है. ठीक है, मैं बच्चे को छोड़ने लेने स्कूल नहीं जा सकती तो मैं अपना टाइम पास तो करूँगी. ऑब्वियसली आई हैव टू कीप माई सेल्फ बिजी. देयरफॉर शी स्टार्टेड कीपिंग हर सेल्फ बिजी बाय स्पेंडिंग अ टाइम इन द स्पिनिंग व्हील. चरखा, आपने वो गांधी जी वाला चरखा सुना होगा. सो वो पूरा दिन अपना समय स्पिनिंग व्हील पे बिताती थी. दोपहर का शाम का कुछ टाइम अपने लिए निकालती थी जिसमें खाना खाती थी. एंड शी यूज्ड टू फीड लॉट्स ऑफ स्पैरोज. हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आती थी, वो बहुत दाना देती थी, उनके वरांडे में बैठती थी, उनसे प्यार करती थी. कह रहे कुछ स्पैरोज आके उनके शोल्डर्स पे बैठती थी, उनके हेड पे बैठती थी. शी नेवर यूज्ड टू शूट देम अवे, नेवर एवर. इनफैक्ट उनको प्यार करती थी कि वो बैठे हैं तो शी यूज्ड टू टॉक टू देम एंड डिस्कस थिंग्स विद देम, चाहे वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. बट एक लव अफेक्शन अगर आप एनिमल से शेयर करते हो ना, इट इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ आवर स्ट्रीट डॉग्स. एक बार आप उन्हें खाना दो, दे विल नेवर फॉरगेट यू, नेवर एवर. हमेशा आपके पीछे आते रहेंगे, हमेशा आपसे एक अफेक्शन वाला बॉन्ड दिखाने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स हाउ एनिमल्स आर. सो ऐसा ही कुछ बर्ड्स ने भी उनको रेसिप्रोकेटेड लव दिया. नाउ अब तक एक लिंक फ्रेंडशिप का टूटा था, एक्सेप्टेबल था, समझ आया. बट स्टिल कम से कम एक थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन है कि वो एक घर में तो रह रहे हैं. चलो खाना खाते, डिनर लंच पे अपने ग्रैंडसन की शक्ल तो देख लेती होंगी. Now that common link has also been broken because grandson की graduation ख़त्म हो गई है and for post graduation he is going abroad. अब क्या, अब तो वो common link भी टूट जाएगा, abroad चला जाएगा, सेम घर भी शेयर नहीं कर पाएंगे. क्या ये झटका ग्रैंड मदर बर्दाश्त कर पाएंगी? What do you think? Reply by writing in the comment box. बट आपको खुशी से बताना चाहूँगी दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट. शी डिड नॉट शो एनी सच ओवरवेलम्ड इमोशंस. शी डिड नॉट इवन क्राई. खुशवंत सिंह कह रहे मैं बहुत डरा हुआ था शायद ये रोएंगी, बीपी हाई या लो ना हो जाएं, ये झटका बर्दाश्त ना कर पाएँ. एंड एट दिस एज वन कैन नेवर टेल. जिस एज में ग्रैंड मदर हैं कुछ भी हो सकता था. आई वॉज अ बिट पेट्रिफाइड. But then I was surprised. He's saying I was aghast to see that my grandmom showed no expressions at all. In fact, when she
came to bid me farewell, at that particular time everyone was crying, even I was a bit sentimental, but my grandmother showed no emotions at all. She was busy in telling her beads of rosary, भगवान को याद करने में busy थी, उन्होंने कोई emotion expression show नहीं किया. And खुशवंत सिंह के जाने के बाद भी she was all fine. कह रहे now the time has come when I'm coming back home. अपने 2-3 साल का कोर्स करने के बाद वापस आया तो ग्रैंडमदर रिसीव करने आई. Now Khushwant Singh was expecting that my grandmother will get overwhelmed by the emotions, she'll get ecstatic and jubilant, and she'll get in a God viva mood. That means very happy. But grandmother ने कोई expression ही नहीं show किया, वो चुपचाप खड़ी रही अपनी beads of rosary के साथ और वो घर गई. बट कहीं ना कहीं दिल में खुशी तो थी कि पोता आया है. घर जाकर उन्होंने कुछ एक अनयूजुअल एक्टिविटी करी. क्या अनयूजुअल एक्टिविटी थी? उन्होंने अपनी सारी आस पड़ोस की लेडीज़ को बुलाया एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग्स ऑफ वॉरियर्स. मतलब जब सैनिक वापस आते हैं तो जो गाने गाए जाते हैं वो गाने गाने लगी. एंड शी स्टार्टेड थम्पिंग ड्रम. अब इस एज में आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, बीमार हो जाओगे. सब रोक रहे थे दादी को, ऐसा मत करो, आप इस एज में इतना प्रेशर अपने ऊपर मत डालो, नाच गाना करने की उम्र नहीं है. वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू आर हैप्पी, बट स्टिल ये सब मत करो. बट दादी ने किसी की नहीं सुनी. शी स्टार्टेड बीटिंग, थम्पिंग ड्रम एंड गाने गाए, खुशी मनाई. अब ये सब इंजॉयमेंट करने के बाद वो बीमार हो गई तो डॉक्टर को बुलाया गया. डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगी, शी जस्ट नीड्स रेस्ट. बट ग्रैंडमदर, आई डोंट नो हाउ शी गॉट दिस इंट्यूशन दैट आई एम गोइंग टू डाई. और वो बहुत गुस्सा हुई, सबको बोलने लगी मैंने पूरी ज़िंदगी भगवान को अपनी प्रेयर्स ऑफर करी. उस दिन लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, मैं आज मरने वाली हूँ, जब मुझे भगवान को याद करना चाहिए था मैं नहीं कर पाई. देयरफॉर आई ऑर्डर यू ऑल टू गो फ्रॉम हेयर एंड लीव मी अलोन. मुझे अकेला रहने दो. आई वॉन्ट टू ऑफर माई प्रेयर्स टू गॉड. सब उन्हें कह रहे दादी ऐसा कुछ नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो. अब ठीक है, बड़े लोग बोलते रहते हैं, ये हम लोग ऑब्वियसली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते. बट यू विल बी puckered brow to know that that was seriously the last day of grandmother. कुछ ही टाइम बाद वो अपनी बीड्स ऑफ रोजरी और भजन गा रही थी कि उनके लिप्स चलना बंद हो गए, आंखें बंद हो गईं एंड वो भगवान को प्यारी हो गई. नाउ आफ्टर ग्रैंडमदर्स डेथ, जब उनको उनकी डेड बॉडी को नीचे रखा गया वेरांडा में, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स जिनको वो रोज़ फीड करती थी, दे केम, दे सैट अराउंड ग्रैंडमदर्स डेड बॉडी, दे mourned, दे पेड देयर रेवरेंस टू ग्रैंडमदर. कुछ टाइम बैठी. मदर ने सोचा जैसे ग्रैंडमदर रोज़ इन्हें दाना देती थी, सिमिलर वे में मदर आज बैठकर उन्हें दाना देने की कोशिश करने लगी. ये सोचा कि बर्ड्स एनिमल्स ही तो हैं, खाने के पीछे तो कोई इमोशंस नहीं होते उनमें. बट नहीं, बर्ड्स ने एक भी दाना, एक भी बर्ड ने नहीं खाया. दे जस्ट केम, पेड देयर रेवरेंस टू ग्रैंडमदर एंड वेंट. सब चली गई. This chapter awakens us or shows us that it is not only human beings who have emotions, rather animals and birds, they also have emotions, right? डॉग्स हर दिन उनके पीछे पीछे आते थे बिकॉज एक दिन उन्होंने खाना खिलाया. बर्ड्स के एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस देखिए आज कि वो अब एक मॉर्निंग के लिए करने आई हैं एक ह्यूमन बीइंग को. सो दैट सिंपली शोज दैट इफ़ यू गिव लव टू एनिमल्स दे रेसिप्रोकेट इट ऑब्वियसली. बट बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, हम इंसान लोग शायद अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एनिमल्स, बर्ड्स हमारे आसपास, इनको टोटली इग्नोर करते हैं. कितनी एनिमल्स मर रहे हैं, कितनी बर्ड्स मर रही हैं, हम कभी ध्यान ही नहीं देते. कितने रेडियो एक्टिव एनर्जी से बर्ड्स मर रही हैं, कितने स्ट्रे डॉग्स ऐसे ही घूमते रहते हैं. कभी हमने क्या उन्हें खाना खिलाया? क्या हमारा कोई रोल नहीं है उनकी तरफ? वो हमारे लव एंड अफेक्शन के लिए इतना तरसते रहते हैं. क्या हम दे पाते हैं उन्हें वो लव एंड अफेक्शन? क्या हमें देना चाहिए?
Yes, so this is a lesson that is being taught in this chapter, and also this chapter has tried to highlight a beautiful bond being shared by grandparents and grandchildren. So this is simply, I also want you to think and ponder over how your relationship is or was with your grandparents. Please do write in the comment box. And one promise that I want from you all, please start showing some humanity to बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड. भगवान ने हम सबको एक धरती पर भेजा है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ना कि हम तो एक दूसरे के मर्डरर्स बन गए हैं. बर्ड्स को मार रहे हैं लोग. दे आर एंजॉइंग पोचिंग, दे आर एंजॉइंग killing animals. They have made it a game, or they have become so materialistic to earn money. They are killing animals. This is something strictly, I think, should be prohibited. So thank you so much. That's all for the day. I hope you have understood the summary of the chapter. Please try and go through the question answers from any of the reference books, and yes, feel free to ask if you have any questions. Thank you so much. Have a nice day, and do not forget to keep stalking us. Bye bye. Take care.